Hi. Hi, Ria. Hi. Yeah. So, should we start? Yeah. Okay. Okay. So, hello everyone. Good evening, and welcome to the season two, episode two of Online Chopal. Online Chopal is a unique program presented by Inoble Private Limited, and today we have a wonderful guest, Hia Anuja. Yeah. Hianeja. Right. Some connection problem. Okay. Yeah. So we'll just start up again. This is Divya Duhita, and I am a CEO of Enoble Private Limited, and we have our first series was Success Ennobling series, and this is the second series that we have started up. It is all about online chupal, the stories of all those people which are unheard and unspoken by the world. So we opened up the form for many people out there in the market, and we have got a lot of entries. But today we have our special guest with us, and she is Hia Anuja. Over to Hia. Hia, can you tell us something about yourself? Yeah. Introduction about me, right? Yeah. So name is already like known to everyone. I'm Hianeja, and I'm a journalist currently working with the top portal of Jammu and Kashmir, JK Media. And if you talk about my hobbies, it's like I'm a DIY junkie and an introvert who loves drawing. As I already told you that there were many stories out there with us as entries, and one of the Yeah. story that I received is of a teacher. बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि इस पेंडेमिक टाइम में स्टूडेंट्स किस तरीके से एक पेन को गो थ्रू कर रहे हैं, एंजाइटी को गो थ्रू कर रहे हैं, बट हम एक टीचर का Exactly. एस्पेक्ट देख नहीं पाते. तो बड़ी एक खूबसूरत सी एक स्टोरी, और पेन खूबसूरत इस सेंस में कि एक ऐसी कहानी जो हर 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 एक टीचर की कहानी है. तो वो Right. एक हमारे पास एंट्री आई, और आज हम उसी के ऊपर ऑनलाइन चौपाल कंडक्ट करेंगे. तो ऐसी है कुछ. वो कहते हैं कि आई एम अ स्कूल टीचर करंटली वर्किंग विद प्राइमरी क्लासेस. आई फील worn out on a regular basis. There are classes to be taken, assignments to be checked. I also have to be present in case any student or parent have any query about topic. I also have a toddler. बच्चे भी हैं उनके, जहाँ पर अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है. It is becoming very difficult for me to balance my home life and my work schedule. There are no boundaries which differentiate family time and work time. Right? I feel tired more than I should face. Difficulties in carrying out these house chores, the basic routines, and I find it difficult, particularly hard to wind down the mental rush. ये हर किसी की कहानी है. या आप भी तो जर्नलिस्ट हैं, Exactly. आप Exactly. भी बाहर Yeah. जाते हैं और आप कितना काम करते हैं, और आप जब घर आते हैं तो शायद घर का भी काम करना पड़ता होगा. तो किस तरीके से मैनेज Exactly. करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे आज. तो कुछ एक लाइंस और हैं. देयर आर दीज मेंटल list of things to do that alone wears me out even before started with the work. What habits should I incur in my daily life to make managing my work easier? तो ये शायद ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज जर्नलिस्ट हम जानते हैं कि कितना हेक्टिक लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं. तो किस तरीके से एक आम इंसान, चाहे टीचर हो या चाहे हाउस होल्डर है, इस पेंडेमिक में अपने आप को बैलेंस वे में चला सकता है. और कोई एग्जांपल ना दे अगर बात करूं, अभी ये लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले जब आपका कॉल आया था, आई वाज लाइक मैं बाहर इंटरव्यू कर रही हूँ, उसके बाद आके ये इंटरव्यू भी करना है, देन ऑफिस का कोई काम करना है. सो
और इस समय मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बेसिकली, बट एक जर्नलिस्ट एक्चुअली में घर बैठ के काम नहीं कर सकता, उसे बाहर जाना ही पड़ता है। नो मैटर व्हाट, आपको ग्राउंड रिपोर्ट करनी ही करनी है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, बाहर कोई भी स्टोरी, कोई इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है, आपको बाहर जाना है। चाहे टेक्नोलॉजी भी आ गई है, बट स्टिल वी आर गोइंग आउटसाइड एंड घर से भी काम कर रहे हैं। इवन आफ्टर दिस लाइव सेशन मेरे को ऑफिस का भी पेंडिंग काम पूरा करना है, इंटरव्यू भी करके आई हूँ। सो लाइक इससे पहले भी मैंने अभी एक इंटरव्यू किया थोड़े टाइम पहले। सो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। इवन अगर जर्नलिस्ट की बात ना भी करें, इस टाइम पे जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड मैंने लोगों से भी बात करी है। तो इवन मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो सब लोगों का इस टाइम यही है कि ओवर वर्क कर रहे हैं वो लोग। ओवरलोड एक तो ऑफिस की तरफ से भी है, दूसरा ऑब्वियसली आप घर में हो तो आपके पेरेंट्स तो बोलेंगे भी थोड़ा बहुत घर का काम भी करो। मैं थोड़ी सी इस चीज में ब्लेस्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं भी अपनी 9 घंटे की जो शिफ्ट है वो लगाओ आराम से। बट बाकियों की अगर बात करें तो ऑब्वियसली लोगों को घर के काम करने पड़ते हैं। एंड जो स्टोरी आपने बताई जो इस सेशन के लिए आई है स्पेसिफिकली हमारे पास टीचर की, तो ऑब्वियसली उन्हें बच्चों की डाउट्स भी क्लियर करने हैं, बच्चों के फ्यूचर उनके हाथ में है, तो उन्हें उनके डाउट्स भी क्लियर करने हैं। बच्चे उन्हीं को क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली। और इस टाइम तो ट्यूशंस वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं चल रही, सबको कोरोना का डर है, तो टीचर्स की वहां पे भी ड्यूटी डबल हो गई है। एंड वो अपने घर में है, घर का भी काम करना है, एंड उनके बच्चे हैं उनका भी काम करना। तो बहुत हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए इस टाइम पे। ऊपर से जो पैनिक क्रिएट हुआ है इस टाइम पे कि इतने ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, अब बाहर निकलना भी चाहो तो भी नहीं निकल सकते। सो इतने ज्यादा, एक तो वर्कलोड इतना ज्यादा, ऊपर से पैनिक प्रेशर इतना ज्यादा है। सो इस टाइम आप मेंटली फिजिकली दोनों तरह से एग्जॉस्टेड हैं, राइट। या मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी ऐसी कोई कैलामिटीज आती हैं तो हर इंसान के लिए ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने ये देखा कि जब मैं अपने प्रोफेशन में काम करती थी कि लोगों के, जब हमने मेंटल लेवल्स को बढ़ाना शुरू किया, एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की, तो हमने ये देखा कि लोग उसी काम को, जिस काम के लिए वो डरते थे या जिस काम को करने पे वो मतलब उनके एंजाइटी फैक्टर आता था कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, वो बहुत आसानी से करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आजकल के टाइम में भी जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत थिन लाइन है और वो थिन लाइन डिफाइन नहीं हो पा रही है बिकॉज हम घरों से काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेंटल कैपेसिटी को बिल्डअप करें। तो जब मैं कह रही हूँ कि मेंटल कैपेसिटी को बिल्डअप करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहीं जाके जिम करना है। इसका मतलब ये कि आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है आप उसको बियर कीजिए, रेजिलियंस बढ़ाइए अपने अंदर, बर्दाश्त, जिसे हम पुराने जमाने में लोग कहते थे कि आप अपनी बर्दाश्त बढ़ाइए। बिकॉज जब वो बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन होने लगती हैं, खुद ब खुद अपने ट्रैक पे आने लगती है और हमारा पोटेंशियल बिल्डअप होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब घर पे बैठे हैं, हमारे यहाँ पर 20 मीटिंग्स होती हैं। मैं ये सोचती थी कि मैं 10 मीटिंग कर लूंगी तो मतलब बहुत हो गया दिन का काम, लेकिन यहाँ 20 हो रही है, फिर भी लगता है कि नहीं और काम करना है और मैं और काम कर सकती हूँ। तो जितना आप अपनी पोटेंशियल बिल्डअप करते हैं उतना ही आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कैपेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं, तो जब आप निकलते हैं अपनी मीडिया के लिए, अपने काम के लिए और लोगों के इंटरव्यूज लेने के लिए, आपके अपने भी तो काम होते होंगे और उनको किस तरीके से आप करते हैं और टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? प्रोबेबली ये इस सवाल का जवाब हमारे टीचर्स के लिए बहुत मायने रखेगा और हमारे उन लोगों के लिए मायने रखेगा जो घर पर बैठकर इसे सुन रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, मुझे ऑप्शन मिली कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड लाइक कंप्लीट एंटी सोशल पर्सन। तो मैं तो खुश थी कि भाई अब वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। सो इनिशियल स्टेज में सब सही रहा, बट इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि आई वाज लाइक ऑफिस जाना है यार, आप घर में कितनी देर बैठ के इस तरीके से काम करेंगे, लाइक आप लोगों से बिल्कुल कट ऑफ है और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाती है। लाइक रिसेंटली मैं आपको बताऊं, 1-2 दिन पहले हमें रिपोर्ट सबमिट करानी थी एंड ऑब्वियसली घर के भी काम होते हैं, जैसे आपने कहा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो ही जाती है। सो मैंने बीच में से ब्रेक ली काम के, आई वेंट आउटसाइड फॉर अपना काम वाम किया जो भी है। उसके बाद लाइक रात को 2 बजे तक मैं रिपोर्ट बना दी थी, लिटरली रात को 2 बजे तक मैं अपने काम के लिए शायद ना जागूं, बट प्रोफेशनल काम जो डेडलाइन है उसको कंप्लीट करना है, सुबह 6 बजे रिपोर्ट देनी है, तो उसके लिए बनाना पड़ा रात को 2 बजे तक। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ना बहुत ज्यादा मिक्स होके रह गई थी। तो एक चीज जो मैं नोटिस की इनिशियल स्टेज में जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, तो मेरा स्केड्यूल था कि जैसे ऑफिस 10 से हम 7 काम करते हैं, सो मैंने कमरे में अपना लैपटॉप नहीं रखा, मैंने बाहर टेबल लगाया, वर्क स्टेशन बनाया अपना प्रॉपर
चांस मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी भी। तो प्रॉपर वहाँ टेबल चेयर लगा के मैं वहाँ काम करती हूँ लैपटॉप पे, एंड 10 to 7 है तो 10 to 7 ही करना है, 7 बजे लैपटॉप बंद तो बंद। ये इनिशियल स्टेज में हुआ, बट इवेंचुअली जब ऑफिस से भी प्रेशर आता है, ठीक है घर में हो कर लो, वाईफाई लगाया हुआ है, लैपटॉप है, घर से काम कर लो, तो ये चीज ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाती है। फिर आप ये भी देखते हो ब्रेक है, चलो अपना घर का काम कर लो थोड़ा सा, तो ये चीज बहुत ज्यादा मिक्स होती है। ये उल्टा नोटिस की, जैसे मैं इनिशियल स्टेज पे करती थी ना कि फिक्स शेड्यूल है, 10 से 7 ही करना है तो 10 से 7 ही करना है, नो मैटर व्हाट, 7 बजे लैपटॉप बंद हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, चाहे उसमें मेरे को घर का काम भी करना पड़े, बट उसके लिए ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑफिस में होते हैं ऑब्वियसली घर का काम करने हम ऑफिस से नहीं आएंगे। तो एक प्रॉपर शेड्यूल अगर बनाएंगे, एंड घर वालों की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें भी मेरे मम्मा पापा बोलते हैं चल जाके चाय बना के ले गया, बीच में ये काम कर ले वो काम कर ले, या अगर मैं उनको मना करूं तो उसके बाद वो नहीं फोर्सफुली इन द सेंस कि कर ले आओ रेस्ट कर लो एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब करें तो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस आपको वर्क फ्रॉम होम में भी इस तरीके से करना है, लाइक यू आर इन द ऑफिस, टाइम शेड्यूल फिक्स है तो है, 1 घंटे के बीच में ब्रेक है तो है, तो अगर आप उस शेड्यूल पे टिक जाते हैं किसी भी तरीके से तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके मैं इस पे जैसे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कभी जैसे इमरजेंसी पड़ जाती है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना काम छोड़ के फैमिली की तरफ बढ़े। तो जरूरी है कि जैसे लेट्स से कि टीचर्स हैं वो क्लास ले रही है और आपके घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाती तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप क्लास ही लेते रहेंगे, आपको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रायोरिटी क्या है हमारे टाइम मैनेजमेंट में, हमारे हर सेकंड की प्रायोरिटी में क्या क्या आ रहा है, तो वो बहुत मायने रखेगा। बिकॉज आजकल इतना क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं, कोविड हर दूसरे बंदे को हो रहा है, आपको पता ही नहीं कब बीमार हो जाए, परिवार में कौन बीमार है, तो हमें उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप हर एक मिनट का प्रायोरिटाइज करें कि इस वक्त क्या ज्यादा जरूरी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट की बात है कि हम किस तरीके से फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आप जिम जा सकते हैं, पर मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जिम्स अभी नहीं बने हैं। और अगर आप साइकेट्रिस्ट पास भी जाते हैं तो उसकी इमेज ही बहुत डिफरेंट है, राइट। आप साइकेट्रिस्ट पास जाएंगे कि नहीं हो रहा भाई मैनेज हमसे, तो एक गलत सेंस में ही लिया जाता है, अभी भी सोसाइटी में इसे टैबू ही माना जाता है। सो मतलब फिजिकल जिम अगर आप कह सकते हैं तो मेंटल जिम भी होना चाहिए, जहां आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है। उस पर आप क्या कहेंगी? राइट तो मेंटल जिम के लिए ही नॉबलर प्राइवेट लिमिटेड ने मेंटल हेल्थ जिम एक इनॉग्रेट किया है, जहां पर जल्दी ही हम लोग एंट्रीज शुरू कर रहे हैं। और हम चाहते भी हैं कि आप भी सपोर्ट करें, JNK के सारे लोग हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस पर्टिकुलर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं अपने मेंटल रेजिलियंस को बिल्ड अप करने के लिए। क्योंकि मैंने ये सीखा है जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो इसको एक कन्वर्जन में बहुत डालना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको बेनिफिट करके जाए, ना कि आपको हार्म करके जाए और कमजोर करके जाए। और मेरा मानना ये है कि हर इंसान में वो पोटेंशियल है कि वो हर सिचुएशन में उतर कर खड़ा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कोविड, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। यस गाइडेंस की जरूरत है, पर्सपेक्टिव की जरूरत है। और हमारे जो भी ऑनलाइन ये मेंटल जिम रहेगा वहां पर ट्रेनिंग्स हुआ करेंगी, डिस्कशंस हुआ करेंगी, पर्सपेक्टिव डिफाइनिंग किया जाएगा, एक केस स्टडीज की जाएंगी जहां पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सामने लेके आया जाएगा, और हम किस तरीके से हर नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव सिचुएशन निकाल सकते हैं, अपने लिए लर्निंग्स ले सकते हैं। तो ये नॉबलर प्राइवेट लिमिटेड का एक पहला ऐसा वेंचर है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर एक जिम क्रिएट कर रहा है, वो भी ऑनलाइन। बहुत जरूरत है इस टाइम। तो फिजिकली भी बात करें तो जिम जो है वो बंद है, हम घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इनॉबलर्स जो है वो क्या ऑनलाइन ही कोचिंग देगा या क्या कुछ रहने वाला आपका सिस्टम? हमारा एब्सोल्युटली ऑनलाइन रहेगा। हम जल्दी से जल्दी इसको मार्केट में इंस्टाग्राम पे ही ऐड चलाएंगे, देखेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशंस किस हिसाब से आ रही हैं और हमारे इन हाउस कितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं। तो जैसे ही हो रहे हैं हमारे को एक मिनिमम नंबर मिल जाएगा तो हम किक स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से जूम मीटिंग होती है हम रेगुलर बेसिस पे मिला करेंगे, डिस्कशंस की जाएंगी। कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमने डिजाइन की हुई हैं पर्टिकुलरली टू बिल्ड अप द मेंटल मसल, और उनको लगातार प्रैक्टिस में लाया जाएगा। जिस तरीके से आप जिम जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जिम जाते हैं तो एक गोल होता है कि हमें ये बॉडी चाहिए, ये बाइसेप बनाना है, ये ट्राइसेप बनाना है। मेंटल मसल में ऐसा नहीं होता।
जब आप मेंटल मसल बिल्डअप करने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन से एरिया पे काम करना है, तो पहले वो एरिया डिफाइनिंग की जाती है, फिर उसके बाद उस पे एनालिसिस किए जाते हैं और उस पे काम किया जाता है। तो आपको एक परमानेंट कोच भी मिलेगा जो आपको हेल्प आउट करेगा, और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर इनॉबलर्स होंगे। जब मैं कह रही हूँ और इनॉबलर्स, इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत भी आएगा, क्योंकि कोरोना की इवन हमारे पास भी जब ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, हम आगे फिल्टर करके डालते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन ही लोगों तक जाए, पर हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, हमें पता चल रहा होता है कितनी डेथ हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। सो इतने ज्यादा जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? राइट। आपके ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट, मैं खुद देख रही हूँ जो जर्नलिस्ट लोग हैं उनको कितना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज वो फोर फ्रंट वॉरियर्स हैं, वो जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। हम तो घरों पे बैठ के सिर्फ बातें ही सुन रहे हैं ना, लेकिन आप लोग तो एक्चुअली हॉस्पिटल्स जाके देख रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं और कितनी डेथ्स हो रही हैं, दिन में कितनी बारी एम्बुलेंस जीएमसी से गांधीनगर हॉस्पिटल में फेरी करती है। तो ये जब सिचुएशन सामने आती हैं तो बंदे को डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है। और इसी वक्त में अगर आपको एक इनॉबलिंग कम्युनिटी मिल जाए जो आपको इकट्ठा करके रखे, जो बहुत जरूरी है, और आपकी मेंटल मसल बिल्डअप करेगा, ये टाइम पे काम किया हुआ लॉन्ग रन तक चलेगा और आपको बेनिफिट करेगा। तो बहुत ये भी जरूरी है कि हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन में एक ऐसी इनॉबलिंग कम्युनिटी हो। हमें कल्चर ही ऐसा हो गया था कोविड से पहले कि हम सोचते थे हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें अपना देखना है। आज हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम कम्युनिटी हैं, हम सोसाइटी हैं, हमें एक दूसरे का देखना है। तो बड़े सारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आ रहे हैं, जैसे जर्नलिस्ट भी काफी मदद कर रहे हैं कि जिन पेशेंट्स को ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में भी काम कर रहे हैं। तो हमारा कोविड ने हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ चले गए हम। एग्जैक्टली। इस पे अगर मैं अपनी शेयर करूं तो मैं जेके चैनल इस समय ओवरऑल उसका मीडिया मैनेजमेंट करती हूँ, तो वहां पे हमने कोविड एसओएस का पूरा मैनेज किया हुआ है, वो सारा मैं ही संभाल रही हूँ। तो इस टाइम एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं घर से भी अगर काम कर रही हूँ, 90% मैं घर से काम कर रही हूँ, तो घर से भी किस तरीके से सोसाइटी की हेल्प की जाए। तो हम एसओएस पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं, कहाँ प्लाज्मा मिल रहा है, किसी को रिक्वायरमेंट है वो डाल रहे हैं। इवन अगर जेके मीडिया जहाँ पे मैं एंकरिंग करती हूँ वहां पे भी बात करें तो आशीष जी ने वहां पे स्टार्ट किया है कि वो खुद जाके लोगों की हेल्प करते हैं। तो अपने लेवल पे जितना भी हो सके ना, इस टाइम सारे इस समय काम कर रहे हैं। मैं वहां पे कोविड हीरोज का भी इंटरव्यू लेती हूँ, और वो नहीं जो डॉक्टर्स हैं, वो जो इस समय एक्चुअली ग्राउंड पे जाके लोगों को खाना दे रहे हैं या किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, राइट? राइट। तो बहुत जरूरी है कि हम एकजुट हो जाएं, चाहे हम इनॉबलर क्लब्स के थ्रू हो या हम जेके मीडिया के थ्रू हो। ये कैपेबिलिटी हमारे में है कि हम एकजुट होकर इस लेवल पे भी हो या इंडिविजुअल लेवल पे भी हो, और इंडिविजुअल लेवल कलेक्टिव लेवल पे बन जाएगा तो फिर कहना ही क्या। तो फिर हमारे जम्मू में ऐसी ताकत खड़ी हो जाएगी जो एक दूसरे के लिए खड़ी है। तो पेंडेमिक तो सिर्फ एक बहाना ही होगा, आगे कोई भी कलामिटी आएगी तो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। तो पर्पस ऑफ इनॉबलर भी यही है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करें जो एक दूसरे के लिए खड़ी रहे इन थिक एंड थिन्स। तो इसी के लिए हमने ये चीजें लॉन्च की है एज अ कंपनी, नॉट एज एन एनजीओ, एज ए कंपनी, ताकि हम लोगों को बता सके दैट देयर इज अ प्रोफेशन लाइक दिस। कॉर्पोरेट वेलनेस पे भी आजकल बहुत बात हो रही है, और हम लोग बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ एंगेज्ड हैं जो इस वक्त उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं ताकि हम उनके एम्प्लॉयज को ये वेलनेस को भी लुक आफ्टर कर सकें। तो क्यों ना जम्मू के साथ शुरुआत की जाए, जम्मू के कॉर्पोरेट्स के साथ शुरुआत की जाए, जम्मू के स्कूल्स के साथ शुरुआत की जाए, ताकि हम एक ऐसा बिल्डअप करें कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ खड़ी हो। यहीं से क्यों नहीं शुरुआत करें? जैसे आपने बोला कि आप लोग एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, टिप्स देने वाले हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कोई एक टिप जो इस समय जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए, लाइक घर पे बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं? हमारी अटेंशन जो होती है ना, सेंसेस के थ्रू बाहरी तौर पे जाती है। हम आंखों से बाहर की तरफ देखते हैं, कानों से सुन रहे हैं, जब हमारे पास कुछ सेंसेस के लिए आता है तो हम टेस्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमारी सेंसेस बाहरी तौर पे जा रही है। उनको अंदर की तौर पे लेना है, अंदर लेना है। लाइक गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स ऑफ टाइम, 10 मिनट आप अपने साथ बिताइए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज होगा कि अंदर तो तूफान चल रहे थे ख्यालों के। तो जब वो ख्याल बाहर निकलने शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिएटिविटी के फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब क्रिएटिविटी की फॉर्म में बाहर आएंगे, आपको खुद को पता चलेगा आप सोच क्या रहे थे,
आजकल की सोसाइटी में मेजर चैलेंज यही है कि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है वो सोच क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है। Exactly. तो बहुत पहला स्टेप ही हमारे लिए मेजर चैलेंज ही यही है कि हम इस रियलाइजेशन तक पहुंचे कि हमें हो क्या रहा है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई सोल्यूशन नहीं है ना, साइकेट्रिस्ट तो आपको मोल्ड कर देगा, लेकिन एक ऐसे इंसान के पास, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जब आप आएंगे कि जहां पर आपको एक रिस्पेक्ट भी मिले, प्लस आपको टाइम मिलेगा अपने पे काम करने का। और कोविड टाइम जब सब घर बैठे हुए हैं तो बहुत जरूरी है कि हम वो वक्त निकालें अपने लिए। और वो इस टाइम पे सही निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में होंगे, आप वो रेस्ट लेके ऑफिस में ही रहोगे ना, घर में आप अपने कंफर्ट जोन में जा सकते हो। एंड मैं भी जब लाइफ स्किल पढ़ती थी ना, तो वहां पे एक था स्वॉट एनालिसिस। आप अपना सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये उस समय हमें सिखाया गया था। तो उस टाइम हमें ऐसे लग रहा था ये क्या, हमें अपने अपने बारे में जब हम लिखने बैठे ना, हमें ऐसे लिमिट थी 2-3 हजार वर्ड का लिखना है, तो हमें लगा इतना कौन लिखेगा यार, हैंड रिटन कैसे करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। पर जब लिखने बैठे ना, एक्चुअली पता नहीं चला। एंड जब सोचा अपने बारे में तो इतना ज्यादा डिफाइन किया। जब हमने रिपोर्ट सबमिट करी ना अपनी, सर ने नहीं पढ़ी, कहते ये तुम्हारा है, तुम पढ़ो अपने आप, तुम अपने आप को समझो इस चीज से। एंड उसके बाद बोला कि हर 6 महीने में अपना स्वॉट एनालिसिस करो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा तुम क्या, तुम्हारी ग्रोथ हुई है, क्या कुछ तुमने इतने टाइम में किया है। सो एग्जैक्टली हमारी डायरेक्शन आउटवर्ड से हटके इनवर्ड की तरफ चलेगी। तो जैसे इनवर्ड की तरफ चलेगी, हमारे एनालिसिस होने शुरू हो जाएंगे, जैसे हिंदी में हम स्वाध्याय कहते हैं, कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि अपने अंदर क्या चल रहा है, अपनी वीकनेसेस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है। और इस पर्टिकुलर टाइम में जब अपनी स्ट्रेंथ समझ आ जाएंगी तो वीकनेसेस से फाइट करने के लिए भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। और हम टर्म्स अलग हो सकती है, बट जानना अपने आप को अंदर से है, राइट? Yeah, perfectly. So this is the purpose of Enabler। ये ऑनलाइन चौपाल शुरू करने का भी एक ही एजेंडा था कि चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, उनके जो भी चैलेंजेस हैं हम उनको सामने लेके आएं और एक कहानी के तौर पे, एक डिस्कशन के तौर पे उन पे बातचीत करें और एक सोल्यूशन ड्राइव करें। So hopefully yeah, it has been a success for you and for me as well, and I'm very happy that जो स्टार्ट होने वाला उस पे भी पूरी सपोर्ट है, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much, and very happy for you to joining with us today for the live, and we hope कि आगे भी हम कुछ collectively कुछ कर सकें। Yeah. श्योर। और बेस्ट विशेस टू यू। जैसे आप स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए, इवन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि जो अंदर ही अंदर लोगों ने रखा हुआ है, शायद वो बाहर निकाल पाए और अपने आप को समझ पाए। Right. So my contact number is 9086088305. Probably if Hia will share in the story itself. Do contact us in case of any need. We are always there to help you out. Thank you so much. Thank you Hia. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye.